قاسم واسم کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ جزلان کب سے اپنے پرانے ملازموں کو آواز دے رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو مہوش کو گھر چھوڑنے کا کہتا اپنے دوستوں میں نکل گیا تھا اور اب رات 8 بجے گھر آیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو بلا رہا تھا مگر کافی دیر جب کوئی آواز نہیں آئی وہ کمرے سے باہر آتے لاؤنج میں کھڑا اونچی آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے رائد نے ناگواری سے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ چھوٹے خان، وہ قاسم اور واسم اب سے حویلی میں نہیں آئیں گے، بلکہ کوئی بھی مرد حویلی میں نہیں آیا کرے گا، یہ بڑے خان کا حکم ہے۔ ان کی پرانی ملازمہ نے وہاں آتے اسے غصے سے دیکھ کر جلدی سے کہا تو بڑے خان کے نام پر اس نے صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ میں مصروف رائد کو دیکھا جو وہاں ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو۔ اور یہ بڑے خان کون ہوتے ہیں ایسے حکم دینے والے، اور کس خوشی میں یہ حکم دیا گیا؟ وہ پھر سے اس غصے سے سرخ آنکھ کے لیے بولا تو ملازمہ نے اپنا حلق تر کیا۔ وہ بلا وجہ ہی ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ جی آنے والی بڑی بہو بیگم پردہ کرتی ہیں، ان کی وجہ سے سارے مرد ملازم حویلی سے ہٹا دیے گئے۔ ملازمہ گردن جھکائے ادب سے بولی تو جزلان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ ابھی آئی تو نہیں ہے نا؟ ابھی سے انہیں کیوں حویلی کے باہر کے کام سونپ دیے ہیں؟ وہ ضبط کرتے گھرایا تو ملازمہ کام گئی۔ ان خانوں کے غصے سے تو پورا گاؤں واقف تھا، جب انہیں غصہ آتا تھا تو کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، باقی جو بھی کام ہے وہ خود کر لے گا۔ رائد مصروف انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بولا تو ملازمہ اپنی جان خلاصی ہونے پر جلدی سے وہاں سے نکلی۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے آدمیوں کو باہر نکالا ہے؟ جزلان غصے سے بھرا ہوا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، رائد اپنے کام میں مصروف سکون سے کہتا۔ اس کا خون کھولا گیا۔ میرے آدمیوں کو باہر نکالنے سے پہلے میری اجازت کی ضرورت ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تو رائد ایک نظر اسے دیکھتا اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہارا کوئی بھی ملازم آج کے بعد حویلی میں نظر نہ آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ رائد وارن کرتا اسے غصے سے لال پیلا چھوڑ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ٹیبل پہ رکھا واز اٹھاتے جزلان نے زور سے زمین پہ دے مارا اور کمرے میں جاتے ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر گیا۔ اوپر اپنے دروازے پر کھڑے رائد نے ناگواری سے اس کی حرکت پر سر جھٹکا۔ وہ جزلان تو کیا اس گھر میں کسی بھی فرد سے زیادہ بات کرنے کا قائل نہیں تھا، اور اب وہ یہی کرتا تھا، اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جزلان کا یہ روز کا کام تھا۔ وہ جب گھر واپس آتا تو اپنے خاص آدمیوں یعنی قاسم اور واسم دونوں کو ہی کبھی کسی کام اور کبھی کسی کام کے لیے بار بار اپنے کمرے میں بلاتا تھا، مگر اب جب رائد کی شادی میں 10 دن بچے تھے تو اس سے آئلہ کے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سارے مرد ملازموں کو باہر کے کام سونپ دیے، جبکہ حویلی کے اندر کے لیے کئی نئی ملازمائیں رکھ لی گئی تھیں۔ رائد نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس صبح جانے سے پہلے اس نے سرسری سا تراب خان کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور اسپاٹ لہجے میں نور بیگم کو نئی ملازمائیں رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ نور بیگم کو تو اس کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ وہ بہت خوش تھیں کہ رائد اپنی ہونے والی بیوی کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہا۔ انہیں یقین تھا وہ اپنے باپ کے جیسا تو ہرگز نہیں بنے گا، بلکہ ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، مگر تراب خان انہیں فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ان کا بیٹا شادی سے پہلے ہی آئلہ کی اتنی فکر کر رہا تھا، نہ جانے شادی کے بعد وہ کیا کرتا، اور یہ بات ان کے خاندان کی شان کے خلاف تھی۔ ان کے خاندان میں عورتوں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھایا جاتا تھا، مگر ان کا بیٹا تو خاندان کے بالکل ہی الٹ چل رہا تھا، جس پر انہیں غصہ اور افسوس تھا، مگر وہ رائد کو کچھ کہہ کر اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے اس کی ہر بات مان رہے تھے۔ جبکہ اپنے والد کو رائد کی ہر بات مانتے دیکھ جزلان کو بہت غصہ آتا تھا، جس کا اظہار وہ بار بار تراب خان سے کر چکا تھا، مگر انہوں نے یہی کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اور خود سے ناراض نہیں کر سکتے، جس پر جزلان بھی ضبط کر کے رہ جاتا تھا۔ پتہ نہیں مہوش کو کیا ہو گیا ہے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ ہاں میں گئی تھی اس کے گھر کی طرف، کافی بیمار رہنے لگی ہے اور کمزور بھی بہت ہو گئی ہے۔ وہ پہلے والی مہوش تو لگتی ہی نہیں، نہ جانے کیا ہو گیا اسے۔ کینٹین کے دروازے سے قریب ایک میز پر مہوش کی 2 دوستیں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ جبکہ وہ اپنی کلاس لے کر کینٹین میں داخل ہوئی تو ان کی آواز اس تک بآواز پہنچ گئی، جس پر اس کے چلتے قدم رکے تھے۔ کیا تم نے اس سے یونیورسٹی آنے کا پوچھا تھا؟ اب تو 1 ہفتہ ہونے والا ہے اسے یونیورسٹی سے چھٹیاں کرتے کرتے، پہلی لڑکی نے فکر مندی سے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ شاید اب وہ کبھی یونیورسٹی نہ آ سکے، دوسری نے خاصی پریشانی سے کہا، جبکہ دروازے میں کھڑی ایمل کے دماغ میں ان گنت سوچوں نے جگہ بنائی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی ان لڑکیوں کی طرف قدم بڑھا گئی۔ سنو، مجھے مہوش کے گھر کا ایڈریس، اس نے بغیر لگی لپٹی کے ڈائریکٹ کہا۔
तुम्हें क्यों चाहिए? पहली दोस्त ने कदरे हैरत से इस्तफसार किया। मुझे उससे कुछ काम है, वो स्पार्ट अंदाज में बोली। तो दोनों लड़कियों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर इस्पात में सर हिलाते हुए मैविश के घर का एड्रेस लिखवा दिया। एमल से उनकी कोई दोस्ती नहीं थी, बस वो उनकी सीनियर थी। पूरी यूनिवर्सिटी में ज़हीन स्टूडेंट्स की फहरिस्त में शामिल होती थी। पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी कि वो एक बहादुर और बाहिम्मत लड़की है, इसलिए मैविश की दोस्तों ने ज़्यादा सवाल जवाब किए बगैर उसे पता लिखवा दिया था। थैंक्स। वो पता लेती फ़ौरन ही कैंटीन से बाहर निकल गई थी। उसकी कोई ख़ास क्लास नहीं थी, जब भी उसने फ़ौरन ही मैविश के घर जाने का इरादा कर लिया। उसके दिल में कई सवाल पैदा हो रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ मैविश दे सकती थी। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद उसका रिक्शा उसकी मतलूबा पते पर रुका था। रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे देते उसने एक नज़र उस छोटे मगर खुली गली पर डाली, जहाँ दोपहर का वक्त होने की वजह से सन्नाटा था। उसने गहरा सांस भरते उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया था। कौन? 2 मिनट बाद ही अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई। जी, मैं एमिल हूँ, मैविश की दोस्त। उसने अपना तारुफ करवाया तो 1 सेकंड से भी कम वक्त में दरवाज़ा खुल गया था। क्या मैविश घर पर है? मैं उससे मिलने आई हूँ। दरवाज़ा खोलते ही सामने 17 साल की लड़की को खड़ा देख उसने मुस्कुरा कर पूछा। जी हैं वो, आप आएँ। उस लड़की ने साइड पर होते उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो उसने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा। आपको पहले कभी नहीं देखा, वरना इससे पहले जो मैविश आपी की दोस्तें हैं मैं उनसे मिल चुकी हूँ। वो लड़की दरवाज़ा बंद करते हुए उसे अपने साथ चलने का इशारा करते बोली। मैं उसकी नई दोस्त हूँ, वो काफ़ी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, इसलिए उससे मिलने चली आई। एमल एक नज़र पूरे घर का जायज़ा लेते बोली तो उस लड़की ने समझते हुए सर हाँ में हिला दिया। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3 कमरे थे और बाहर एक आंगन था, वहीं छोटा सा किचन था। कौन आया है? दाएं जानिब से बने कमरे में से एक खातून बाहर आई, जो शायद एमल की मामा थी, जो शायद उसकी अम्मी थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं एमल हूँ, मैविश की दोस्त। सुना था उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए देखने चली आई। एमल ने मुस्कुराकर अपने आने की वजह बताई। अच्छा बेटा, जाओ मिल लो, वो सामने उसका कमरा है। उन्होंने सामने की जानिब इशारा किया था। वैसे आंटी मैविश को हुआ क्या है? पता नहीं बेटा, 1 हफ्ता होने को आया, मगर उसका बुखार उतर ही नहीं रहा। थोड़ा सही हो जाता है, फिर बुखार तेज़ हो जाता है। एक बार बहुत मुश्किल से दवाई दिला कर लाई थी, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब वो दोबारा जा ही नहीं रही डॉक्टर के। 5 दिन पहले अपने किसी दोस्त के घर से आई थी, उसके बाद से तो जैसे खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, बस हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है। अल्लाह जाने, पता नहीं मेरी बेटी को किसकी नज़र लग गई। तफसील से बताते मैविश की वालदा की आवाज़ आखिर में नम हुई थी। आप फिक्र ना करें आंटी, वो जल्द ठीक हो जाएगी। एमल के तसल्ली देने पर वो नम आंखें दुपट्टे से साफ कर गई। चलो जाओ बेटा, आप जाकर उससे मिल लो, अच्छा है, उसका दिल बहल जाएगा। उनके कहने पर एमल धीरे से सर हिलाती सामने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो हल्के से दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल हुई तो सामने दीवार के साथ लगे 2 सिंगल बेड्स में से एक पर कोई जैसे सदियों से बीमार वजूद लेटा था। महवेश, वो उसे पुकारती धीरे से दरवाज़ा बंद करके उसके बेड के पास आई। तुम? उसकी आवाज़ पर महविश ने आंखें खोलते उठने की कोशिश की, मगर बुखार की वजह से जिस्म टूट रहा था, जिसकी वजह से उठा ही न गया। मैं मदद करती हूँ। एमल ने आगे बढ़कर उसे सहारा देने के लिए उसके बाजू पर हाथ रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे गर्म तवे पर हाथ रख दिया उसने। महविश, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुमने दवाई ली कोई? उसे पीछे टेक लगाकर बिठाने के बाद वो उसके साथ ही बेड पर बैठती फिक्रमंदी से बोली। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? महविश उसके सवाल को नज़रअंदाज करती स्पार्ट लहजे में बोली। मुझे पता चला कि तुम इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही और बीमार भी हो, तो मैं तुम्हारी दोस्तों से पता लेकर तुमसे मिलने आ गई। एमल उसके चेहरे को गहरी निगाहों से देखने लगी। जर्द चेहरा, आंखों के नीचे स्याह हल्के, चेहरे पर एक दर्द था जो एमल देख सकती थी। हम में इतनी अच्छी बातचीत तो नहीं थी कि तुम मुझे देखने मेरे घर तक आ जाती, महविश उसी अंदाज में बोली। उसके लहजे में न जाने क्या था जो एमल का दिल घबरा रहा था। मैं जानती हूँ महविश, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती तो नहीं है, दोस्ती तो क्या, हमारी तो इतनी बातचीत भी नहीं है, मगर एमल ने दानिस्ता अपनी इब्तदाई बात अधूरी छोड़ी। मगर क्या? महविश के चेहरे पर अभी तक तासुरात स्पाट थे, ना गुस्सा, ना बेचैनी, ना उलझन, कुछ नहीं था उसके चेहरे पर। महविश, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करती उसके चेहरे पर नज़रें जमाए पूछने लगी तो महविश के चेहरे का रंग यकदम फक पड़ा, जिसे एमल की तेज़ नज़रों ने अच्छे से महसूस किया। महविश, मुझे अपना दोस्त समझो और जो भी बात है मुझे बता दो। आई प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। एमल उसके जर्द हाथ पर अपना हाथ रखती उसे यकीन दिलाने लगी, मगर महविश तो जैसे साकित हो गई थी। वो वहीं 5 दिन पहले पीछे चली
गई। जुज़लान का धोखा, उसका रोना, सिसकना, मिन्नतें करना, सब जैसे एक बार फिर उसकी आंखों के आगे लहरा गया था। पर किसी का हाथ अपने हाथ को थपथपाता महसूस करते उसने एक झटके से आंखें खोल दी। महविश, तुम ठीक तो हो? उसके चेहरे का उड़ा रंग देखकर अमल फिक्रमंद हुई। साथ साथ ये भी समझ गई कि ज़रूर महविश के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, मगर क्या, उसे ये पता लगाना था। वो एक जर्नलिस्ट बन रही थी, उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। सबकी मदद के लिए वो हमेशा आगे आगे रहती थी। बस ऐसी वजह से वो महविश से भी दोस्ती ना होने के बावजूद उसके घर तक चलकर आ गई थी। मगर यहाँ आकर उसने जो महविश की हालत देखी थी वो काबिल रहम थी। कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो तुम जाओ यहाँ से। महविश घबराते हुए अटक अटक कर कहती, उसका हाथ झटक गई। इससे पहले कि अमल कुछ और पूछती, दरवाज़ा खुला, जिस पर महविश ने हरासा नज़रों से दरवाजे की सिमत देखा। मगर वहाँ अपनी छोटी बहन को हाथ में चाय की ट्रे पकड़ कर आते देख उसे सुकून हुआ था थोड़ा। ये आपकी चाय, वो साइड कॉर्नर पर ट्रे रखते हुए बोली। तो अमल ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, जिस पर महविश की बहन मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। उसके निकलते ही अमल एक बार फिर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। महविश, तुम्हें डरने या घबराने या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो सकता है मेरे पास तुम्हारी परेशानी का कोई हल हो। अमल एक मुखलिस दोस्त की तरह उसकी परेशानी पूछ रही थी, मगर महविश के कानों में जुज़लान की आवाज़ गूंज रही थी। और हाँ, गलती से भी किसी को बताने की कोशिश नहीं करना, वरना मेरे पास हमारे गुजरे हुए लम्हात की सारी यादें मौजूद हैं, और मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। महवेश, अमल ने नरमी से पुकारा, जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। वो एक झटके से उसका हाथ अपने हाथ से हटाती घुर्राई तो अमल परेशान हुई थी। महवेश, अगर तुम अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, अमल ने फिर समझाया। मुझे किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना, प्लीज़ चली जाओ तुम यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। महविश उसके सामने हाथ जोड़े रो दी, जिस पर आगे बढ़कर अमल ने उसे अपने गले लगाया। किसी का साथ पाकर महविश, जो इतने दिनों से अंदर से घुट घुट कर रो रही थी, जो इतने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही थी, अमल के गले लगते ही ज़ारो कतार रो दी। अपने दिल का गुबार आंसुओं की सूरत बहाने लगी। अमल ने भी उसे रोने दिया था। वो बस खामोशी से उसकी पीठ सहलाती रही। जब काफ़ी देर बाद महविश कुछ नॉर्मल हुई तो वो उसे खुद से दूर करती साइड कॉर्नर पर रखी पानी की छोटी बोतल का ढक्कन खोलकर उसके मुंह से लगा गई, जिससे महविश ने चंद घूंट भरते ही पानी की बोतल को परे धकेल दिया, जिस पर अमल ने पानी की बोतल को बंद करते हुए वापस उसकी जगह पर रख दिया। अमल की चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, मगर उसे परवाह कहाँ थी। वो तो बस महविश की उसकी हालत के बारे में उससे पता करना चाहती थी। उसका जो भी दुख है वो बांटना चाहती थी, उसकी परेशानी हल करना चाहती थी। मगर ये तभी होता जब महविश उस पर यकीन करके उसे बताती, और अब उसे महविश को खुद का यकीन दिलाना था। महविश, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्यों तुम इतनी परेशान हो, पता नहीं क्यों तुमने अपना ये हाल बनाया हुआ है, मगर महविश, अगर तुम अपने दिल का हाल किसी के साथ शेयर करोगी तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। मैं जानती हूँ इससे मसला हल नहीं होगा, लेकिन क्या पता मेरे पास तुम्हारी परेशानी का कोई हल वाकई मौजूद हो, जिस वजह से तुम इतनी परेशान हो रही हो। शायद परेशानी इतनी बड़ी हो ही ना जितनी तुमने सोच ली है। देखो महविश, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, अगर हम ढूंढे तो हमें मिल जाता है, मगर इस तरह से कमरे में बंद होकर खुद को तकलीफ़ देकर अपने घर वालों को परेशान करके कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे, और वो परेशानियाँ और फिक्र उन्हें अंदर ही अंदर खाएंगी। बुढ़ापे की वजह से झुके कंधे तुम्हारी परेशानी की वजह से और ज़्यादा झुकने के बाद उन्हें मज़ीद बूढ़ा कर देंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। उसने नरमी से उसका हाथ थामा, जिसके बाद महविश की नज़रें उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ पर रुकी। दिलो दिमाग में एक अलग जंग चल रही थी। वो अमल के खलूस को देखते उसे सब बताना चाहती थी, मगर अगले ही पल जुज़लान की धमकी याद आ जाती, जिसकी वजह से वो ज़ुबान को फिर ताला लगा देती। देखो महविश, मैं नहीं जानती कि वजह क्या है, तुम क्यों कुछ भी नहीं बताना चाह रही किसी को, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जो तुम्हें किसी का भी सामना नहीं करने दे रही। अमल की बात पर महविश ने झटके से सर उठाकर उसे देखा था। वो कैसे जान गई थी कि वो शर्मिंदा है और किसी का सामना नहीं कर पा रही, किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही। उसे कैसे ये सब पता चला।
मुझ पर भरोसा कर सकती हो तुम। उसे खुद को तकते देख एमल उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करती प्यार से बोली थी। महविश की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। वो एक नतीजे पर पहुंच गई और उसे सब बताती चली गई। जुज़लान से पहली खुशगवार मुलाकात से लेकर आखिरी तकलीफ मुलाकात तक सब कुछ बताती। वो हाथों में चेहरा छुपाए रो दी, जबकि एमल तो उसकी सारी बात सुनते ही जैसे शॉक्ड रह गई। वो जुज़लान को तो जानती थी, मगर महविश जो जुज़लान की बातों में आकर खुद अपनी इज्जत खराब कर गई थी, उसकी बात सुनते पैरों तले से ज़मीन सरकी थी। ये तुम सही कहती थी जुज़लान खान के बारे में, वो वाकई एक भेड़िया है। खा गया है वो मुझे, बर्बाद कर दी उसने मेरी ज़िंदगी। वो रोते हुए बेबसी से सर हाथों में गिरा गई। ऐसे उसे क्यों बोल रही हो? तुम खुद उसके पास गई थी, उसने तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। सिर्फ उसे कोसने का तो जवाब ही नहीं पैदा होता। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी, तो अब बैठ के रो क्यों रही हो? एमल ने चुपते हुए लहजे में कहा तो महविश का दिल फटने के करीब हुआ। वो सही ही तो कह रही थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ सारी गलती उसमें उसकी अपनी ही थी। ना वो जुज़लान के साथ ज़्यादा फ्री हो, ना वो उसकी बातों में आती। अगर मोहब्बत कर भी ली थी तो शादी से पहले अपने करीब तो बिल्कुल नहीं आने देती, मगर उसे तो जैसे जुज़लान के अलावा कुछ दिख ही ना रहा था। जुज़लान तो था ही शिकारी, लेकिन अगर वो उसे अपने करीब ना आने देती तो उसकी हिम्मत ही ना होती उसे हाथ लगाने की। मगर उसने भी तो जुज़लान का बराबर साथ दिया था। वो अपने आप को उस वक्त खुद का मुजरिम महसूस कर रही थी। सर शर्मिंदगी से झुक गया था। तुम सही कह रही हो, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। मुझे उसे अपने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। वो वक्त निकल जाने के बाद अब पछता रही थी, जिसका कोई फ़ायदा ना था। महविश, अब तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहोगी तो तुम्हारे घर वाले परेशान होते रहेंगे। मैंने तुम्हारी वजह से आंटी की आंखों में आंसू देखे हैं। बहुत फिक्रमंद हैं वो तुम्हारे लिए। तुम अपने लिए ना सही पर अपने घर वालों के लिए अब जियो। जो हो चुका है उसे भुलाया नहीं जा सकता और ना ही बदला जा सकता है, मगर इस सब को पीछे छोड़कर आगे ज़रूर बढ़ा जा सकता है। जानती हूँ ये मुश्किल है और इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन देखना एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। एमल ने उसे नरमी से समझाया। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, बताना चाहती थी उसे कि औरत के पास उसकी इज्जत ही होती है जो उसने अपनी बेवकूफ़ी से गंवा दी, मगर वो उसकी ज़हनी हालत को देखते कुछ नहीं कह पाई। मैं कुछ नहीं कर सकती एमल, मैं दुनिया का सामना नहीं कर सकती। अगर मैं बाहर निकलने का सोचती भी हूँ तो ऐसे लगता है जैसे सारे लोग मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे हैं, मेरे चेहरे पर छाई अजियत को पढ़ पा रहे हैं। मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगी एमल, कैसे? वो सिसक उठी। एमल ने उसे दुख से देखा। अगर तुम इस तरह घर में डर कर बैठी रहोगी तो वो तुम्हें कमज़ोर समझ कर और डराएगा। तुम हमेशा उससे डरती एक कमरे में कैद होकर रह जाओगे। तुम बाहर निकलो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, किसी मकाम पर पहुंचो, फिर देखना तुम्हारे सारे डर खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। एमल ने उसे हिम्मत दी थी, मगर महविश का दिल अब भी जैसे मानने को तैयार ही ना था कुछ। एमल, मेरा एक काम करोगी? चंद मिनट की खामोशी के बाद महविश ने पुरुमीद नज़रों से उसे देखा। बोलो। क्या तुम जुज़लान के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकती हो? क्या तुम उसका चेहरा बेनकाब कर सकती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई भी और मासूम लड़की उसके जाल में फंसे। महविश की बात सुनते एमल सोच में पड़ गई। वो हमेशा से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती आ रही थी, तो क्या वो इस बार नहीं उठा सकती थी? लड़कियों को महफूज नहीं कर सकती थी बाकियों को? एमल, मैं कमज़ोर हूँ, डरपोक भी हूँ, कुछ नहीं कर सकती, मगर तुम बहुत बहादुर हो, बुराई के खिलाफ लड़ सकती हो। प्लीज़ मेरा नाम आए बगैर उसके खिलाफ पोस्ट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ उससे बच सकें। महविश ने पुरुमीद लहजे में कहा तो एमल ने गहरी सांस भरते सर इस बात में हिलाया। ठीक कह रही हो तुम, जब मैं जर्नलिस्ट बनूंगी तब की तब देखी जाएगी, मगर अभी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बगैर कुछ बने भी एक पावरफुल पोस्ट कर दें तो बहुत तेज़ी से वायरल होती है, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट लगाती हूँ। मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता। अल्लाह ने चाहा तो जुज़लान खान का चेहरा जल्द बेनकाब होगा। वो एक आज़म से कहती उठ खड़ी हुई। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँगी। एमल झुककर उससे गले मिली। बैठो, चाय तो पियो, ये ठंडी हो गई है, मैं दूसरी मंगवाती हूँ। महविश ने उसे रोकना चाहा। उससे बात करके महविश के दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया था और अब वो अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी।
फिर कभी, अभी मैं चलती हूँ। और हाँ, तुम भी दवाई ले आना और ठीक होकर जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी वापस ज्वाइन करो। एमल मुस्कुराकर बोली तो महविश ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। महविश को एमल बिल्कुल पसंद नहीं थी पहले, क्योंकि एमल अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, इसलिए महविश उसे मगरूर समझती थी। मगर आज एमल खुद उसके पास आई, उसको समझाया, उसकी मदद की तो महविश को पता चला कि वो इतने सालों से गलत थी। एमल एक बहुत अच्छी लड़की थी जो बगैर किसी गर्ज के सबकी मदद करना जानती थी।